Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, let other students join. I think so two only are there right now. Aisha Vivian, Aisha Bad. Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay, size and structure of a community. We are now coming on this topic. Size of a community, it can be small, it can be larger. Okay, जैसे आपने पहले देखा, consisting of few species population in a small space or large comprising several species population in a large area. Larger ones extend over areas of several thousands of square kilometer of forest such as deserts, etc. Okay, the thing is that just for example, if you go to the coastal area of Karachi, you can find the community there. ठीक है, अब वहाँ पे भी कम्युनिटी देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड दे डू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज इन देम. ठीक है, यानी कि एक कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट स्पीशीज होंगी. ठीक है, और उसी के अंदर आपके जो है वो अगर कोई स्पेसिफिक एनिमल भी मौजूद है तो दैट वुड बी लिविंग. फॉर एग्जांपल मैंग्रोव के में अगर आप देखें तो मैंग्रोव की भी आप कम्युनिटी कह सकते हैं, बिकॉज इन मैंग्रोव there are different other type of species, plant species are found and animal species do occur there, decomposers and all. Then that thing so they are having, they are basically known as community, because they can be larger enough. Okay, and they can take thousands of several thousands of square kilometers as far as other such as deserts, or yeah, they can be the what community are the group of microbes in such micro habitat as leaf surface, fallen log, जो लिटर सॉइल एक्सेट्रा. छोटे से एरिया में भी आप कह सकते हैं जो है वो एक छोटा जो एरिया है दैट इज हैविंग more number of populations in it, then that can also make a small community. So community can be broadly, they can be smaller and they can be larger depending upon the type of the habitat there. ठीक है, माइक्रो हैबिटेट्स हैं अगर, ठीक है, लिविंग स्पेस लेसर. ओके, सो दे कैन बी स्मॉलर. ठीक है, एंड इफ बड़ा स्पेस है और वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज भी ज़्यादा है, then that can be called size. On the depending upon the size that can be larger. यानी इसमें जो एग्जांपल दे रहे हैं, फॉरेन लीफ habitat as leaf surface, foreign log, litter, soil, they can be there. अच्छा, now coming to how it's not moving. Then the structure. Structurally, community may be of two types, open and closed. Sometimes it happens that the plants are or the species are very close to each other. Plant community यानी बहुत ज़्यादा close होंगी तो हम उसको यानी दूर दूर नहीं है, करीब करीब है अगर, तो हम उसको कहेंगे closed community. Plants of open communities are distantly placed, whereas in closed communities plants are so closely packed as and intimately associated that there is no hope for invasion of any other new plant. For example, यानी इसमें भी हम देख सकते हैं जो closely packed species हैं, they are not only present in the large communities, they can be smaller one. smaller area में भी आपके पास ऐसा हो सकता है कि बहुत ही closely packed plants हैं and they do not want other any other type of plant to invade in them, or any alien species to invade in them. तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो क्लोज कम्युनिटी है, और द स्ट्रक्चरली इफ द कम्युनिटी इज or the plants are widely spaced, they do have wide space between them, then that type of species, then that type of community sorry is known as open community, और structurally is basically open community. ओपन एंड क्लोज की टर्मिनोलॉजी इसी तरह से आती है. जैसे अगर हम डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट के अंदर भी जो हमारे पास कम्युनिटी होती है दैट इज ओपन वन, क्योंकि वहाँ पे भी जो
प्लांट्स होते हैं, दे आर क्वाइट वाइडली स्पेस बिकॉज द कंपटीशन इज क्वाइट हार्ड। ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन जो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, कंपटीशन फॉर व्हाट, फॉर क्या नाम है, फॉर रिसोर्सेज, फॉर योर वाटर। वाटर बहुत कम है तो ज़ाहिर है वहाँ पे कंपटीशन वहाँ पे उसके लिए स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो वेरी लेसर। Community characteristics, analytical characteristics, if we talk about quantitative and qualitative, अगर हम इसमें देखें तो frequency of the community also is a matter of concern. Density of the community, how much it is dense, इसको one by one देखेंगे. Abundance, cover and basal area of the community, these are all the quantitative which we can measure. Analytical characteristics जो हम analyze कर रहे हैं but we can measure them, यानी कि हम उनको measure कर सकते हैं. Frequency is the thing which we can measure in on a field area. एक फील्ड एरिया पे आप क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं प्लांट एक कम्युनिटी की. यू कैन मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कम्युनिटी, you can measure density of the community, you can measure abundance of the community, you can measure cover and basal area of the community. ठीक है, then qualitative which just tell you the quality of that species, that is physiognomy. ठीक है, phenology, stratification, quality you which you can not measure but you can only have a look on them and you can just tell the quality of that. ठीक है, abundance also is a quality भी हम इसको इसमें लेते हैं. sociability and vitality, life form, these are all the qualitative measurements of a community. then analytical characteristics को हम किस तरह से define करेंगे? those characteristics which are important for study, explanation and analysis of community are called analytical characteristics. यानी कि वो ये बात हो गई कि जब हम community को describe करना चाहेंगे तो उस community को how can we describe it? ठीक है, there must be something as a note that you are doing. For example, you are measuring something or you are just telling the feature of that community. तो दो broad classes हो जाती हैं जिसमें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो मैंने आपको अभी पहले बताया कि क्वांटिटेटिव में क्या आ जाएगा और क्वालिटेटिव में कौन कौन से मेजरमेंट्स हैं. Then we are coming to the quantitative characteristics, in which number one is frequency. Frequency is basically what? Frequency means the number of times. First of all, ये हम normally statistics में कर रहे होते, the number of times the thing is coming. Anything which is coming, frequency of anything means number of time a thing is repeatedly coming. ठीक है, तो ये same thing happens applies here. That is frequency is basically coordinate and transit methods are used to take samples of calculating the frequency of various species found in the community. And frequency is the number of times a plant species occurs in a given number of quadrats. ठीक है, किसी quadrat के अंदर, what is a quadrat? Do you have the idea about it? यस मैम, एक स्पेसिफिक एरिया में एरिया प्लॉट करते हैं ना, स्क्वायर एरिया हाँ, होता है. स्क्वायर एरिया, क्वाड्रेट एरिया, जिसमें हम यानी कि अगर हमने कोई एक क्या नाम है वो बनाए हैं, क्या नाम है एक एरिया सिलेक्ट किया है तो उसके अंदर कितने क्वाड्रेट्स आ रहे हैं. ठीक है, इट कैन बी ऑफ 1 × 1 मीटर का भी हो सकता है. ठीक है, इट कैन बी ऑफ हाफ मीटर × हाफ मीटर. इट डिपेंड्स अपॉन योर टोटल अमाउंट ऑफ एरिया. टोटल एरिया जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल 10 × 10 मीटर साइज ऑफ द फील्ड इज देयर, इसमें आप कितने क्वाड्रेट बनाएंगे 10 × 10 के? ठीक है, तो वो 100 के करीब जो आपके पास इसमें क्वाड्रेट बन सकते हैं, 100 भी बन जा सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो नंबर इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ प्लांट स्पीशीज अकर्स इन अ गिवन नंबर ऑफ क्वाड्रेट. किसी क्वाड्रेट में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 100 है. ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ टाइम दैट प्लांट स्पीशीज इज बेसिकली रिपीटिंग. तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज total number of sampling units in which the species occur and total number of sampling units. वो number of sampling units जिसमें आपके पास वो species आ रहे हैं,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीशीज अकर, और टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट विच मीन्स अगर 100 आ रहा है, 100 है आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स, तो उसमें अगर 5 में रिपीटेडली आ रहे हैं तो उसको उसको उसकी उसको अगर हम निकालेंगे देन दैट वुड बिकम द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कम्युनिटी। ठीक है, अच्छा अब इसमें डेंसिटी, इट रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ स्पीशीज इन द कम्युनिटी। डेंसिटी का मतलब है कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स, नंबर ऑफ टोटल सैम्पलिंग, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स। यानी आप इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली द स्पीशीज नंबर, वी आर एक्चुअली लुकिंग इनटू द इंडिविजुअल ऑफ एवरी स्पीशीज। ठीक है, हर स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल्स मौजूद हैं उसके अंदर, in the number of individuals of species in all sampling unit and number of sampling units. एक मिनट, let me see, I think so you beta just a moment, my phone is ringing, just I'm coming. Okay, hello, are you there, are you here, hello, आपकी आवाज नहीं आ रही। now it's clear, is it clear now? Hello, is it clear? यस मैम अब क्लियर। अच्छा सही है। Okay, so density represent the numerical strength of a species in a community. यानी numerical strength मतलब एक species है तो उसके कितने individuals मौजूद हैं, then that would be known as the density of that species. Okay, number of individuals of the species in all sampling unit. For example, if you are having a quadrant area, an area that is having two, यानी इसमें हम कहें कि उसमें 100 फॉर एग्जाम्पल, उसमें जो ये 10 कह लें, ठीक है, 10 इंटू 10 का अगर आपके पास रीजन है, उसमें अगर आपने जो बनाए हैं वो 10 बाय 10 में तो 100 ही बनेंगे, बहरहाल छोटा कर लेते हैं इसको, 5 बाय 5 का अगर हम करते हैं, 5 बाय 5 में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 25 नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स वुड बी 25, ठीक है, और उसमें अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज, किसी एक स्पीशी के इंडिविजुअल्स हैं आपके पास उसके अंदर डिफरेंट क्वाड्रेट्स में आ रहे हैं, बट दे आर इन टोटल नंबर, दे आर फॉर एग्जाम्पल they can be how many, they can be any number, यानी कि they can be, अगर एक जो आपके पास उसका क्या नाम है यूनिट है, उस यूनिट के अंदर 2 हैं फॉर एग्जांपल, तो और इस तरह रैंडमली इफ वी कैन सी, एंड इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो देन इट कैन बी 10, इट कैन बी 20, इट कैन बी 30, ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल ये कि एक एरिया में बेसिकली स्पीशीज, एक खास टाइप की स्पीशी के कितने इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, दैट वुड रिप्रेजेंट योर डेंसिटी ऑफ दैट स्पीशी, ठीक है,
वुड स्पीशी की डेंसिटी बता रहा होगा ये, ठीक है, कि वो कितना डेंस है, हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट इंडिविजुअल आर प्रेजेंट इन एन एरिया, और टोटल नंबर, उसके जब हम टोटल एरिया से में देखेंगे तो टोटल एरिया से हम बोलेंगे कि टोटल एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स किसी एक स्पीशी के मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्या मैंगो ट्रीज, ठीक है, तो मैंगो ट्रीज आर हैविंग, फॉर एग्जांपल मैंगो तो खैर बड़ा हो जाता है ट्री, हम यहाँ पे दो यूकलिप्टस का ट्री ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो यूकलिप्टस मैंगो भी ले सकते हैं, डिपेंड्स। तो उसमें अगर हमने देखा यूकलिप्टस के जो प्लांट्स हैं, दे आर इन एवरी, फॉर एग्जांपल इफ 25 सैम्पलिंग यूनिट्स आर देयर, और हर सैम्पलिंग यूनिट में वो नहीं मौजूद हैं, बल्कि ऑल्टरनेट में या उसके बाद में या दो छोड़ के आपके पास अगर वो यूकलिप्टस मौजूद है, तो देन दैट कैन बी 10, दैट कैन बी 20, दैट कैन बी 30। तो एक स्पीशी के कितने मौजूद हैं वो हम इसको डेंसिटी कहेंगे। इसी तरीके से दूसरे स्पीशी के देखेंगे तो डेंसिटी ऑफ एवरी स्पीशी कैन बी कैलकुलेटेड ओवर हियर। सिमिलरली प्लांट्स एंड प्लांट के लिए ये है, एनिमल के लिए भी हम इसी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। Now the abundance, the number of individuals of a species present in a unit area call its abundance. Total number of individuals of a species in all sampling units, ठीक है, and total number of sampling units in which the species occurred. So this is basically the different definitions of the community. ये क्या चीज है देखो, the number of individuals of a species present in a unit area, एक यूनिट एरिया में कितने मौजूद हैं, is called as abundance. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स, हर सैम्पलिंग यूनिट में कितने हैं, कितने मौजूद हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीशीज अकर। अच्छा, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, उस नंबर से करेंगे बेसिकली जिसमें वो मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 25 का क्वाड्रेट था, ठीक है, 25 ब्लॉक थे, 25 यूनिट थे, लेकिन हर यूनिट के अंदर स्पीशी मौजूद नहीं था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अबंडेंस कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पे, कि हमने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशी इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट में आपने देखा कितने मौजूद है, कैलकुलेट किए, और इन इंडिविजुअल्स आपने कैलकुलेट की सिंपली, और उसके बाद कौन कौन से सैम्पलिंग यूनिट में वो इंडिविजुअल्स मौजूद हैं उससे उसको डिवाइड कर देंगे, देन दैट वुड कवर, दैट वुड टेक इन योर अबंडेंस, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट से आप इसमें डिवाइड कर रहे थे। अबंडेंस में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीशीज अकर्ड, जिसके अंदर स्पीशी मौजूद है, सिर्फ उस सैम्पलिंग यूनिट को आप जो है वो कंसिडर करेंगे। यू आर नॉट सपोज टू कंसिडर ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स लाइक वी वर डूइंग इन द केस ऑफ डेंसिटी। अगर 25 ब्लॉक्स, इसका मैं आपको एक तरीके से सोच रही हूँ, मैं आपको कैसे कोई एक्टिविटी वगैरह दे दूंगी, ठीक है, या इसके ऊपर हम डिस्कस और कर लेंगे सो दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट द डेंसिटी, ठीक है। आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना आ जाए, जिसमें एक मिनट आगे क्यों नहीं हो रहा ये, ठीक है, कि आपको उसमें डेंसिटी कैलकुलेट करना आ जाए, अबंडेंस कैलकुलेट करना आ जाए, फ्रीक्वेंसी, हाउ यू आर गोइंग टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इन अ कम्युनिटी, किस तरह से हम उसको मेजर करें, तो ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मैं कुछ आपको एक्टिविटी दे दूंगी, ठीक है। सो उसी को उसके कुछ आपको टाइमिंग भी रख दूंगी सो दैट यू कैन ऑल्सो हैव अ क्लास इन दैट वे, बट द डेफिनेशन यू नीड टू फॉलो अकॉर्डिंगली। अच्छा, now coming to cover and basal areas. Cover area, it refers to the area of ground occupied by the above ground parts of the plant such as leaves, stems and inflorescence as viewed from above. Cover कितना है? It refers, अच्छा, basal area refers to the ground actually penetrated by the stems and is readily seen when the leaves and stems are clipped at the ground surface. It is one of the chief characteristics to determine dominance. अच्छा, अब इसमें देखो ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें क्या बता रही हैं आपको, बेसिकली दे आर टेलिंग यू व्हाट, कवर क्या चीज है कि यू आर सिंपली लुकिंग फ्रॉम द अबव, एक प्लांटेशन एरिया है, क्योंकि ये प्लांट के लिए बात हो रही है, एनिमल के लिए कवर और बेसल एरिया की बात नहीं हो रही होती है, ना अबंडेंस के लिए सच कोई बात हो रही है, दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट कम्युनिटी, ठीक है। तो कवर एंड बेसल एरिया, कवर एरिया फ्रॉम, यू हैव टू सी इट फ्रॉम द अबव। अच्छा, मैं इसके ऊपर एक बात सोच रही थी कि आपको कुछ प्रैक्टिकल
यानी कि कुछ वीडियोस I will be uploading as a lecture, ठीक है, and then so that you can see it, because we cannot take you to the field right now कोविड की वजह से, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएंगी और चीज़ें कि किस तरह से हम कवर एरिया क्या चीज़ है, बेसल एरिया किस तरह से, फ्रीक्वेंसी उसकी किस तरह की जा रही होती है। तो इंशाल्लाह ताला दैट वुड बी डन इंशाल्लाह टिल बाय द नेक्स्ट वीक, और हो सकता है मैं आज कल मैं इसको लगा दूं उसके ऊपर, आपके एलएमएस के ऊपर, ठीक है, तो आप उसको वहाँ से भी रीड कर लेंगे, और उसके ऊपर मैं कुछ एक्टिविटी या कुछ आपको क्या नाम है असाइनमेंट छोटा सा दे दूंगी इन द क्लास, सो दैट यू कैन डू दैट एंड यू कैन लर्न इट, और उससे फिर जो है वो आपको की एक अटेंडेंस भी हो जाएगी, और फिर दूसरे ये कि आपको उससे इस चीज़ की समझ में आ जाएगी कि व्हाट वी आर बेसिकली रेफरिंग अबाउट। कवर का मतलब ये सिंपल कि आप ऊपर से देख रहे हो उसको कि हाउ मच the ground the area of the ground occupied by the above ground parts of the plant such as leaves, stems or inflorescence as viewed from above। ऊपर से जो आप देखेंगे तो कितना कवर कर रहा है उस एरिया को, उसको हम कह रहे हैं कवर। बेसल एरिया जो एग्जैक्ट बेस उसका जो है मौजूद जहाँ पे क्या नाम है refers to the ground actually penetrated by the stems and is readily seen when the leaves and stems are clipped at the ground, ठीक है। surface it is one of the chief characteristic of to determine the dominance। जो बेसली जो है वो लोअर पार्ट जो वो किस तरह से उसको एरिया को कवर कर रहा है, ये में से मेरा ख्याल है वीडियो से ज्यादा आप इजीली समझ पाएंगे एज कम्पेयर टू द वर्बल डिस्कशन, तो उसको हम देख लेंगे। इट रेफर्स टू द ग्राउंड एक्चुअली पेनिट्रेटेड बाय द स्टेम्स एंड इज रेडिली, स्टेम जितनी आपकी जो पेनिट्रेट हुई है, and readily seen when the leaves and stems are clipped at the ground surface। leaves और stem पे जब आप clip करते then you can see how much area of the plant is basically covering the land, that is basically known as the basal area, one of the chief characteristics of dominance it is। Now coming to qualitative characteristics, physiognomy is denotes the external outline of the community, physiognomy in the form of structure, external appearance of the vegetation which develops due to dominant plants of life form। It is most useful method for nomenclature and appearance of the community। appearance बता रहा है उसकी किस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हो उस कम्युनिटी की, इसको हम कह रहे होते हैं फिजियोनॉमी, ठीक है। एक्सटर्नल लाइन आउटलाइन ऑफ द कम्युनिटी किस तरह की है, फिजियोनॉमी इज द फॉर्म, structure, external appearance of the vegetation which develops due to dominant plant of the life forms। It is most useful method for nomenclature and appearance of the, यानी outline या simply आप ये कह सकते हैं कि external appearance उसकी, या जो है वो जिसको हम एक और कहते हैं मॉर्फोलॉजी, उसको हम कहते हैं कि फिजियोनॉमी, उसको उसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव क्वालिटी हाउ मच दैट इज बेसिकली, चलो इसकी हम थोड़ी सी वो देख लेते हैं, वी कैन हैव सम एग्जांपल सो दैट you can easily their size, life, leaf characteristics, that is basically physiognomy। Deciduous is phenology and evergreen, okay। It is descriptive of the life form of the dominant species। Images when we go, the size of the plant, वो sorry the size of the plant हो सकता है इसमें, type of the leaves हो सकता है, so this will all basically the physiognomy that you can see over here also। so this is basically the physiognomy कि how much leaf form is there, किस तरह का leaf है, ठीक है, elliptical है, कैसा है, या broad leaves are there, ठीक है, और bifurcated leaves are there, और simple leaves one है, किस तरह के leaves हैं, इस तरह की जो life form जो स्ट्रक्चर है, अपेयरेंस है, दैट वुड बी नोन एज फिजियोनॉमी, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ?
अच्छा, now similar, can you hear me or not? Are you there? Yes, ma'am. ओके, तो फिजियोनॉमी में बेसिकली उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली प्लांट की, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स, अच्छा सम टाइम इट हैपन दैट द लीव्स आर क्रिम्पल्ड, ठीक है। लीव्स अगर प्लेन लीव्स हैं तो वो कैसे हैं, अगर लीव्स जो है वो मोटे हैं तो कैसे हैं। सम टाइम दे आर बाइफर्केटेड और सम टाइम दे आर क्या नाम है, ट्राइंगुलर इन शेप, सम टाइम दे आर इलिप्टिकल इन शेप, सम टाइम दे आर सिंपल लीव्स जो हैं, ठीक है। उस तरह की चीज़ों को हम जो है उसमें फिजियोनॉमी में क्लासिफाई करेंगे। नॉमेनक्लेचर को अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किस चीज़ के लिए, टू बेसिकली क्लासीफाई द टाइप ऑफ द प्लांट। प्लांट की क्लासिफिकेशन जो है, टेक्सोनॉमी जिसको हम कहते हैं, तो इन दैट इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। नॉमेनक्लेचर अपेयरेंस ऑफ द कम्युनिटी, उसमें हम उसके हिसाब से ही फिर जो है वो हम इसको एक तो प्लांट की इसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट है, और टू क्या नाम है, classify the community, these all things are very much important. Then phenology, there are many important events in the life history of a species like seed germination, leaf fall, time of flowering, fruiting, and sometimes it happens that the leaf totally fall out from the प्लांट, ठीक है। तो अब इस तरह से दो तरीके के प्लांट हो जाते हैं। एक तो होते हैं एवरग्रीन, समटाइम द डिसीडुअस, विच आर बेसिकली सीजनल प्लांट्स, ठीक है। तो अब हम उसको उसके बिहाफ पे भी कि ये कैरेक्टरिस्टिक जिसमें आपकी जो फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, या फॉलिंग ऑफ द लीव्स हो रही है, ऑन दैट बेसिस वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई, ठीक है। क्लास फिनोलॉजी इज द कैलेंडर ऑफ इवेंट्स in the life history of the plant. These phenological events can be recorded diagrammatically, month wise and season wise, and provide valuable information such as diagram which is known as फेनोग्राम। फिनोग्राम खैर में हमें नहीं पढ़नी है कि फिनो कितनी ज्यादा, ये वैसे आपको लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, देख सकते हैं कि क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन बेसिकली दिस इज वेरी टिपिकल थिंग रिलेटेड टू बॉटनी। बट ओवर हियर यू हैव टू नो सिंपली दैट द ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये तमाम जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर द बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी, जिसमें हम कम्युनिटी को डिस्क्राइब करना जब चाह रहे होते हैं तो हम उसको उसके ये फीचर्स को देख रहे होते हैं, क्वांटिटेटिव फीचर एंड क्वालिटेटिव फीचर, जिसमें हमने देख लिया फिजियोनॉमी एंड फिनोलॉजी। फिनोलॉजी जिसमें हम देख रहे हैं कि लाइफ हिस्ट्री, जो लाइफ कैलेंडर जो बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या क्या प्लांट के साथ हो रहा होता है। समटाइम्स इट इज फ्लावरिंग, समटाइम it is falling leaves, sometimes it happens that the seeds will be germinated, sometimes the fruits would come out, ठीक है। जैसे मैंगो ट्री में जो होता है वो पहले बोर आता है, फ्लावर्स आते हैं, देन दोज फ्लावर्स विल बिकम फ्रूट, ठीक है। तो वो फ्रूटिंग हो जाती है, उसका सीड डिस्पर्सल हो रहा है। ये तमाम चीजें फिनोलॉजी में आ रही होंगी। दीज फिनोलॉजिकल इवेंट्स जो है ये हम इस फेनोग्राम में जो है वो बॉटनिस्ट जो है इसको पूरा जो है वो इसको डिनोट कर रहे होते हैं इसको। और फर्स्ट पार्ट के ऊपर जर्मिनेशन हम मेंशन कर रहे होते हैं, सेकंड पे वेजिटेटिव ग्रोथ मेंशन कर रहे होते हैं, थर्ड पे फ्लावरिंग, फोर्थ पे फ्रूटिंग, फाइव पे सीड जर्मिनेशन मैचुरेशन, एंड सिक्स पे डेथ। तो इट मीन्स कि अगर फेनोग्राम आपके पास सही है 6 इवेंट्स का, तो आप किसी भी प्लांट के जो है वो फिनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट राइटिंग देम अप। तो हम इसको जो है वो, जैसे हम जब इंटर में होते थे तो उसमें वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप की डायग्राम्स होती थी जिसको बॉटनी की, ठीक है, जिसको हम डिनोट कर रहे होते थे प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे फेनोग्राम जब उसके क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स को कैलकुलेट कर रहा है। देन स्ट्रैटिफिकेशन, ये हम पहले देख चुके हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ व्हाट, स्ट्रैटिफिकेशन व्हिच इज हैपनिंग द in the tropical rainforest किस तरह से stratified है। in that is the development of different species of plant community of a given region takes place through the process of adaptation, competition and natural selection, ठीक है। यानी कि आपके जो अगर हम देखें उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं, देन स्मॉल ट्रीज आते हैं, ठीक है। अभी भी रनिंग ऑफ टाइम आ रहा है, 10 मिनट में खर होगा, उसके बाद फिर हम दोबारा लगेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास जो adaptation, sometime they will be, the plants will be adapting and they will also be competing with each other, and obviously they will form their plant layer or their
vegetation layer. This results in the development of various strata or layers between the soil surface. This vertical layering pattern is known as stratification, which we have discussed in, I think so, tropical rainforest की form में. मैंने शायद आप लोगों को बताया था, if I am not wrong, if I am not mistaken. Do you remember that thing? Stratification आप लोगों को बताई थी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की. नहीं मैम, आई डोंट थिंक सो आपने स्ट्रेटिफिकेशन बताई थी. नहीं बताई? नो. Tropical, when we discussed tropical rainforest as a biome, there were certain layers in which vertically we classified that इतने मीटर तक हमारे पास हर्ब्स होंगे. मेरा ख्याल है वो करवाया था मैंने. एक मिनट, लेट मी सी इट on the CMS. The lecture is uploaded. मेरे पास असल में इस कंप्यूटर में नहीं होगा. Some other student if that remember. बहरहाल ये मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल चीज़ है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है इसमें. कि जो है ये स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है कि विद हाइट आप किस तरह से डिफरेंट टाइप की प्लांट्स को, स्पीशीज को किस तरह से वो सरवाइव करें, डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, उस किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी रीजन के अंदर. जैसे अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके पास वहाँ पे नीचे जो है वो बेसल कम्युनिटी होती है, जो कि आपके पास कहलाती है हर्ब्स एंड श्रब्स मौजूद होते हैं, विच इज क्वाइट डार्क इन नेचर. वो बहुत डार्क एरिया होता है. एज वी आर मूविंग अप, थोड़ा सा जब हम ऊपर जाते हैं मीटर्स, व्हेन वी कवर अप सम मीटर्स, देन वी विल बी हैविंग स्मॉल ट्रीज, एंड व्हेन वी आर मूविंग अपवर्ड देन विल बी हैविंग बिगर ट्रीज. चलें इसको मैं आपको इंटरनेट पे दिखा देती हूँ सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ vertical stratification in the tropical rainforests. बहुत छोटी आ रही डायग्राम इसकी. देखो ऑन द टॉप अगर हम देखें तो दिस इज नोन एज ए बी सी एंड डी. डिस्क्राइब अच्छा हुआ है इसलिए. वाइडली स्पेस्ड अम्ब्रेला शेप्ड क्राउन्स, स्ट्रेट ट्रंक्स एंड हाई ब्रांचेस. ये वाला जो रीजन है, यानी ये वाइडली स्पेस्ड है, ये क्राउन्स हैं. ठीक है, जो ट्रीज के क्राउन्स हैं. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज वर्टिकल, बेसिकली दिस नोन एज इमर्जेंट कैनोपी और ट्री कैनोपी. उसके नीचे जब आएंगे तो मीडियम स्पेस्ड, और देखो सबकी हाइट है 30 मीटर से अबव. जब हम देखेंगे तो इमर्जेंट ये टॉप ट्री कैनोपी मौजूद है, और 30 मीटर से 15 से 30 मीटर तक अगर आप देखेंगे तो देयर आर लार्ज ट्री और मिडिल लेयर कैनोपी विच इज बी, एंड मीडियम स्पेस्ड मॉप शेप्ड क्या नाम है प्लांट्स हैं. ठीक है, क्राउन्स हैं ये. ठीक है, और उसके बाद 5 to 15 तक यू विल बी हैविंग डेंसली पैक्ड कोनिकल शेप्ड क्राउन्स, यानी कोनिकल शेप टाइप के जो आपके पास क्राउन्स होंगे, या यानी वो लीव्स का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्राउन कह रहे हैं यहाँ पे. ये वाइडली स्पेस्ड हैं, बड़े चौड़े हैं. ठीक है, विच आर बेसिकली कवरिंग द टॉप मोस्ट लेयर. ठीक है, और ये वाली जो है वो आपके पास इस ये लेयर कहलाती है आपके पास कैनोपी कॉनिकल शेप क्राउन्स, एंड दिस इज डेंसली पैक्ड बिकॉज यहाँ पे जो है वो कैनोपी बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड होंगे यहाँ पे प्लांट्स. और उसके नीचे अगर आप देखेंगे डी पार्ट, sparsely vegetation, sparse vegetation of shrubs and saplings are there. So herbs and ferns and mosses are basically present on the forest floor. ठीक है, जैसे आप मूव करते ऊपर जाएंगे वहां पे आपके पास आएंगे सबसे पहले कोनिकल शेप्ड क्राउन्स, उसके बाद आएंगे आपके पास मीडियम स्पेस्ड
मॉप शेप्ड क्राउन्स, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे तो दे आर वाइडली स्पेस्ड अम्ब्रेला शेप्ड, बहुत ज्यादा वाइड स्पेस को कवर करते हुए अम्ब्रेला शेप्ड क्राउन्स ऑफ द trees you can found which will be known as emergent, and this is known as the vertical stratification within the tropical rainforest, and this is ये तो tropical rainforest की vertical strata in the tropical rainforest, और इसको हम कह रहे हैं stratification, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी वही चीज आपको बताई जा रही है कि stratification is the development of different species of plant community of a given region takes place through the process of adaptation, competition and natural selection, ठीक है। यानी कंपटीशन भी इसमें हो रहा, कुछ प्लांट छोटे एरिया में ही रहेंगे क्योंकि उनको इतनी नीड नहीं होगी, ठीक है, फॉर द, देखो अब इसमें जो कंपटीशन हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें, इस वाली जगह पे यहाँ देख ले जरा, बड़ा ये दिखा रहे हैं, इमर्जेंस एंड देन कैनोपी, डिफरेंट टाइप की डायग्राम है ये, लेकिन ये थोड़ी बिगर है तो इसको हम देख लेते हैं। इमर्जेंस, कैनोपी, अंडर कैनोपी, ठीक है, एंड देन श्रब लेयर। ये मैंने बताया कि विद इन 10 meters देयर विल बी श्रब लेयर, ठीक है, श्रब लेयर, एंड अपर वन विल बी अंडर कैनोपी, दैट वुड बी कैनोपी, जिसको अंडर कैनोपी में हम कह रहे थे कि जो कोनिकल शेप्ड प्लांट्स हैं, कोनिकल शेप्ड कैनोपी है वो होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास मीडियम स्पेस या मीडियम जो लेवल पे आ रहे हैं वो हमारे पास है प्लांट, जिसको ट्रीज है जिसको हम कह रहे हैं कैनोपी, एंड देन द इमर्जेंट वंस विच आर बेसिकली प्रेजेंट अबव 30 meters के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। तो विद हाइट दिस लेयरिंग इज डिफरेंट। नीचे आपके पास श्रब्स क्यों मौजूद हैं? क्योंकि दे कैन नॉट ग्रो अपवर्ड, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दे रिक्वायर द लाइट विद इन दे रिक्वायर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट, दैट इज व्हाई दे आर ग्रोन ओवर हियर। श्रब्स लेयर क्यों यहाँ पे श्रब्स मौजूद हैं आपके बॉटम ऑफ द ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट में? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट कितनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और सनलाइट यहाँ पे है भी नहीं इतनी, इट इज वेरी मच dark and humid type of climate prevail in the bottom of the tropical rainforest. That is why the small trees or small trees, small shrubs and or small plants will be grown only in the forest bottom. जैसे कुछ plants को requirement होगी उस हिसाब से वो grow करेंगे, and as they basically require what they will be एक तो ये पता नहीं कैसी डायग्राम है, हाँ चलें, ये जो है क्या होगा कि इसमें जैसे जो आपके पास ट्रीज थोड़े से बड़े होंगे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रिएंट्स की, दैट वुड बी अ मच बिगर, दैट इज व्हाई दे विल ग्रो अपवर्ड। और जो इमर्जेंस हैं, व्हाई दे आर इमर्जेंस, ये इमर्जेंस की जो इनकी जो कैनोपी है दैट इज वेरी मच बिग, दैट इज अम्ब्रेला शेप्ड। व्हाई? क्योंकि इनकी कैनोपी अगर ऐसी नहीं होती तो दे आर क्वाइट लॉन्गर इन देयर साइज, ठीक है, उनके ट्रंक्स बहुत लॉन्ग होते हैं, तो they would not be having enough amount of sunlight to produce food for themselves. That is why they emerge out from all canopy. They go straight to the highest level, ठीक है, जो आपके पास क्या नाम है बहुत हाइट पे जा रहे हैं 30 मीटर से above, and then to maximize the amount of sunlight to carry out the photosynthesis in a faster way. That is why these yani canopy require more sunlight, that is why they emerge out, they are known as emergent. They do have umbrella shaped canopy, so to absorb more amount of sunlight, to penetrate more amount of sunlight on their leaves, to produce more amount of photosynthesis. This is their adaptation also, ठीक है। तो इसी को हम कह रहे हैं यहाँ पे कि ये इनकी adaptation भी है और stratification भी है, डिपेंड करता है development of different species of plant communities of a given region takes place through the process of adaptation, competition एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। कंपटीशन भी हो रहा है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे कंपटीशन फॉर फूड, competition for light, competition for space is happening. This result in the development of various strata of or layers between the soil surface. This vertical layering pattern is known as stratification. Now, is it clear or not? Hello.